system which contains two equal and opposite charges separated with a finite distance is called electric dipole. Example, AB is an electric dipole which contains two equal and opposite charges plus Q1 minus Q separated by distance small d. Examples, HCl, H2O, CO, NaCl, etc. H plus Cl minus. हेलो, बोलिए। छोड़िए ना, फेसबुक पर आ जाइए। हाँ, उसी से पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, धुंधला जरा है मुझसे। और आगे आइए। और आगे करवा देते हैं। The another topic is electric dipole moment. Again we will discuss the same thing. Plus Q minus Q. O, origin point. Distance between OA L. This is L. Total distance will be 2L. It is defined as the product of magnitude of either charge, magnitude of either charge and separation between the two charges. Two
charges. It is denoted by P, vector P. It is a vector quantity which direction is towards, direction is from minus Q to plus Q charge. From B to A. The dipole moment vector P is equal to Q into 2L. Since Q is a scalar quantity. It is defined as the product of magnitude of either charge and separation between the two charges. It is denoted by vector P. It is a vector quantity whose direction is from minus Q to plus Q. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ होता है. बी केयरफुल. माइनस Q to plus Q. Direction is given by from B to A. It is denoted by vector P. The dipole moment vector P is equal to Q into 2L. Q is a scalar quantity. इस पर हम वेक्टर नहीं दे सकते. अब आइए यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट. यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट. Its SI unit is coulomb meter. That is coulomb meter. Its CGS unit is stat coulomb. Its SI unit is coulomb meter, that is coulomb meter. Its CGS unit is stat coulomb centimeter. Dimension formula, dimension. Since P is equal to Q into 2L. QAT and L. And not LTA or not LTI in the form of that.
expression for electric field vector E due to इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर आपका 3 केस राइज होगा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। केस ए में आपका होता है एट एक्सियल पोजीशन, मतलब यदि आपका कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक्सिस पर हो। सेकंड, इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। और थर्ड में आपका होगा एट एनी पोजीशन, दिस इज BBI, also BBI। इसमें एक सवाल आपका पूछा जाता है आइदर एक्सियल पोजीशन का और इक्वेटोरियल पोजीशन। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एक्सियल पोजीशन पर या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर। इसमें देखिए आपका डाइपोल है -q चार्ज +q चार्ज AB। इसको आगे के तरफ स्ट्रेट लाइन में बढ़ा दिया गया। एक पॉइंट लेना है P जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हियर इज ओरिजिन पॉइंट A, distance between O to B is L, distance between O to A is small l। एक पॉइंट P आपका है R डिस्टेंस पर फ्रॉम मेन पोजीशन, तो B से P का डिस्टेंस आपका होगा R minus L and the distance from A to P is R plus L। फिर से देखिए AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मिड पॉइंट है O। O से B का डिस्टेंस L, O से A का डिस्टेंस L, because -q1 plus q lies either side of the origin point O। So B पर +q चार्ज और A पर -q चार्ज। O से B का डिस्टेंस L, O से A का डिस्टेंस L। O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू डाइपोल AB। तो B से P का डिस्टेंस R minus L और A से P का डिस्टेंस R plus L। पॉजिटिव चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आउटसाइड, माइनस चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इनसाइड। क्योंकि हमने पढ़ा है कि +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे एंड -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड। हमने पढ़ा है +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स। सो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड E1 और -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P पर E2 इनवर्ड। Let AB is an electric dipole of charges -q
and plus q. The distance between them is 2l, such that OB is equal to L, OA is equal to L. Dipole moment. Vector P is equal to Q into 2L in vector form. We have to calculate electric field vector E due to dipole at P, which is at distance smaller from midpoint O. PB is equal to R minus L and AP is equal to R plus L. PB R minus L, AP R plus L. Let the electric field at P due to plus Q charge is equal to vector E1 and due to minus Q charge is equal to E2. The electric field due to plus Q charge at P is given by vector A1 is equal to KQ by R minus L का स्क्वायर along, इसका डायरेक्शन आपका होता है अवे, मतलब होगा along वेक्टर BP, B से P के तरफ, E1 का डायरेक्शन. Similarly, electric field due to minus Q charge at P vector P2 is equal to
के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन होगा पी से बी के तरफ, along PB और along PA, along vector PA, since vector E1 and E2 are opposite to each other and charge plus Q is nearer to P, therefore net electric field vector is equal to E1 माइनस E2, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज के कारण E1 P के पास है, प्लस क्यू P के पास है और माइनस क्यू P से दूर है, तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? प्लस क्यू का इफेक्ट P पर ज्यादा होगा, तो E1 ग्रेटर होगा किससे? वेक्टर E2 से। सो हम नेट फील्ड निकालेंगे वेक्टर इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब E1 और E2 दोनों का वैल्यू हमारे पास है, माइनस कर देना है, तो हम इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर इज इक्वल टू E1 की वैल्यू के क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, के क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। के क्यू कॉमन 1 बाई आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, के क्यू एलसीएम होगा ए माइनस बी ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर प्लस होल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बी नो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, therefore vector is equal to kq 4rl by r square minus l square का square. We can also write it k 2k q 2l by r square minus l square का square. Q इंटू 2l को डाइपोल मोमेंट कर सकते हैं हम लोग, वेक्टर P इज इक्वल टू 2kp बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर। एक रिजल्ट आपका यह होगा, इफ आर ग्रेटर देन एल देन एल कैन बी नेग्लेक्टेड, देयरफॉर वेक्टर इज इक्वल टू 2kp by r q. We can also write E axial is equal to k to p upon r q. ये आपका रिजल्ट होता है E axial का।